નમસ્તે બધાને. નમસ્તે નમસ્તે સર. સર. નમસ્તે. કેમ છો બધા મજામાં? હા સર. હા સર. નમસ્તે સર. તમારી પરીક્ષા એ ધીમે ધીમે નજીક આવતી જાય છે, ખાસ કરીને ટીવાય વાળાની. પછી એસવાય વાળાની કંઈક 17 તારીખે છે. મોટા ભાગના સિલેબસ પણ આપણે પૂર્ણ કર્યા. તમે સારી રીતે તૈયારી કરશો. અને ધીમે ધીમે આપણે સ્ટડી સર્કલની જે પ્રવૃત્તિઓ છે એના ઉપર પણ જતા જઈએ છીએ. તો આજે આપણે કોમર્સ સ્ટડી સર્કલમાં ખાસ કરીને આપણી કોલેજના પ્રિન્સિપાલ ડોક્ટર અનુપમ નાગર સર સાથે ઇકોનોમિક્સ વિભાગના અધ્યક્ષ ડોક્ટર પ્રણાલીબેન, અમીબેન, જોડાયેલી દરેક વિદ્યાર્થીનીઓ અને જે અધ્યાપક જોડાયેલા હોય એ બધાનું કોમર્સ સ્ટડી સર્કલ વતી હું સ્વાગત કરું છું. સંસ્થા ધીમે ધીમે આગળ વધી રહી છે. ખાસ કરીને તમને ખ્યાલ હોય તો સત્રનો અંત હતો ત્યારે સરે એના પ્રવચનમાં કીધું કે હવે ઓનલાઈનમાં પણ 250 જેટલી પ્રવૃત્તિઓ કરેલી છે. એ જ દર્શાવે છે કે આપણી સંસ્થા વિદ્યાર્થીઓ નથી આવતા એ ઓનલાઈન પણ કઈ કચાશ ન રહે એના માટે સતત આપણા પ્રિન્સિપાલ ડોક્ટર નાગર સર દોડતા રહે છે. સ્ટાફ પણ દરેક દોડતો રહે છે. અને એ એટલા માટે કે અહીંયા અભ્યાસ કરેલી દીકરી જ્યારે બહાર નીકળે ત્યારે એને રોજગારીને શોધવા જેવી ન પડે, રોજગારી સામેથી એને શોધીને આવે. આ અમારો મેઇન હેતુ છે. એના માટે તમને ખ્યાલ હશે તો ટીવાયબીએમાં અંગ્રેજી સાથે જે બહેનોએ બીએ કરેલું હોય એ લોકો પાછા પીજી એટલે કે MA અંગ્રેજી સાથે અહીંયા કરી શકે એવી વ્યવસ્થા પણ સરે આ વખતે આપણને પ્રોવાઈડ કરેલી. એટલે કે આપણા અંદર આપણી સંસ્થાની અંદર એક મોર પીચ છે એ ઉમેરાયેલું છે MA અંગ્રેજી સ્વરૂપે. હજી આપણે એવા બધા પ્રયત્ન કરવાના છે કે માસ્ટર ડિગ્રી MCOMમાં પણ આપણે કરી શકીએ. પછી MA વિથ ઇકોનોમિક્સ, MA વિથ ગુજરાતી, આવા બધા વિષયો પણ આપણે કરી શકીએ એવા પ્રયત્નો પણ કરવાના છે. અને એક સરનું એક સ્વપ્ન છે અને આપણી સંસ્થાના વડીલ કાનજી બાપાનું પણ એક સ્વપ્ન હતું કે NK યુનિવર્સિટીની સ્થાપના કરવી. અને એ સ્થાપના કર્યા પછી અથવા એ સ્થાપનાને આપણે સાર્થક કરવી હોય તો એના માટેના પ્રયત્નો અત્યારથી કરવા પડે. હવે જો આમ તમને લાગતું હશે કે ભાઈ આપણે ઓનલાઈન છે ને કોલેજમાં એટલા બધા કાર્યક્રમો છે ને એમાં આપણે જોડાવવું ને અમને બધાને ઘણી વખત એમ થાય કે ઓહો એટલું બધું કામ કરવું પડશે. પણ જ્યારે તમારા ચહેરા ઉપરનું હાસ્ય જોઈએ, સવારના આવી અને આપણા સંસ્થાના પ્રિન્સિપાલ શ્રી ડોક્ટર નાગર સરના ચહેરા ઉપરનું હાસ્ય જોઈએ, એ વ્યક્તિ સવારના 7 થી સાંજના 7 વાગ્યા સુધી 8 વાગ્યા સુધી સંસ્થાની સાથે જોડાયેલા હોય, તો આપણે 1 વાગ્યા સુધી જ કામ કરવાનું. તો આ જે જુદી જુદી પ્રવૃત્તિઓ છે, ખાસ કરીને ધારા અને સ્ટડી સર્કલ. સ્ટડી સર્કલનું મહત્વ એ છે કે તમારી અંદરની શક્તિઓને બહાર લઈ આવે. અને અમે તમને એવી પરિસ્થિતિમાં લઈ જવા માંગીએ છીએ કે તમે અહીંયાથી બહાર નીકળો તો તમે કોઈ પણ ખાનગી કંપનીમાં, તમે ઘરે રહીને અને કંઈક ને કંઈક કમાઈ શકો એના માટે પ્રયત્ન છે.
એટલે કોલેજની અંદર સ્ટડી સર્કલ માની લો કે આજે આપણે જે જવાના છે કે ટેલીનો તમને એક વિડીયો બતાવવામાં આવશે તો તમને ખબર પડે કે તમે ઘરે બેઠા પણ કંઈક કરી શકો. અત્યારે ખાલી રિટર્ન ફાઇલ કરવાનું હોય તો એના 500 રૂપિયા લે છે. ખાલી એક રિટર્ન ફાઇલ કરવાનું હોય. હવે એમાં કઈ કૌશલ્યની એટલી બધી જરૂર નથી. તમારું એકાઉન્ટ સારું હોય, તમે સારી રીતે વર્ક કરી શકતા હોય તો ઘરે બેઠા પણ આપણે બીજાના રિટર્ન ફાઇલ કરી શકીએ. હવે માની લો કે તમને 100 ગ્રાહકો પહેલે વર્ષે મળ્યા, એક ગ્રાહક પાસે તમે 500 રૂપિયા બદલે 300 રૂપિયા લ્યો, તમારા 30,000 રૂપિયાની આવક થઈ અને એ તમારી સાઈડની આવક થઈ. એ ખાલી તમારે અમુક સમય માટે જ કામ કરવાનું છે. બીજા વર્ષે તમે 100 ગ્રાહકો મેળવ્યા, પેલા વર્ષના 100 હતા એમાંથી 80 વ્યક્તિ તમારી પાસે આવી, બીજા વર્ષે બીજા 100 તમે ગ્રાહકો મેળવી દીધા. તો આ બધું આપણે સ્ટડી સર્કલ દ્વારા મેળવીએ છીએ. કોની સાથે કઈ રીતના વાત કરવી. તમે એક LIC ના એજન્ટ બની ગયા, પોલિસી લેવા માટે થઈને આવ્યા, એમાં તમને કમિશન સ્વરૂપે પણ આવક મળશે. તો આપણે કામ કેવી રીતે કરવું, કયું કામ કેમ કરવું, પરિવાર સાથે કઈ રીતના રહેવું, સંસ્થામાં આપણે ડિસિપ્લિનમાં કઈ રીતના રહેવું, સંસ્થામાં આવીએ ઘરેથી નીકળીએ તો આપણા મગજની અંદર હોવું જોઈએ કે ભાઈ મારે ડ્રેસ પહેરીને જ જવું. અત્યારે આપણે જોડાઈએ તો હું ડ્રેસ પહેરીને જ જોડાઈશ, આઈ કાર્ડ મારા ગળામાં હોવું જોઈએ. આ બધું અમે સ્ટડી સર્કલ અને ધારા દ્વારા તમને શીખવવા માંગીએ છીએ. એક નિયમિતતા કેળવવી, એક શિસ્ત અને નેતૃત્વ માટે થઈને આ બધું જરૂરી છે. અને એ અમે તમને ધારા અને સ્ટડી સર્કલના માધ્યમ દ્વારા શીખવવા માંગીએ છીએ. એટલે તમે કોઈ પણ જગ્યાએ હશો તો ત્યારે તમને એક મેનરની ખબર હોવી જોઈએ કે ભાઈ ક્લાસની અંદર એક અધ્યાપક આવે તો આપણે ઊભા થઈને બધાને નમસ્તે કરીએ. આ એક પ્રકારની મેનર છે. હવે તમે નહીં કરો તો એનાથી તમારી ઓલું ઘટી નહીં જાય, પણ એક આપણી ટેવ હોવી જોઈએ. એ જ રીતના દાખલા તરીકે કોઈ પણ ઓફિસની અંદર તમે એક અધ્યાપક તરીકે કામ કરો છો, તમારા સિનિયર અધ્યાપક હોય ને એ કદાચ ના આવે અને તમે ચેર ઉપર બેઠેલા હોય તો તમારે ઊભા થઈ અને તમારા સિનિયર અધ્યાપકને તમારે માન આપવું જોઈએ. આ બધું આપણે શીખવાનું અને એ બધું આપણે 15 દિવસે 1 કલાક આ સ્ટડી સર્કલની મળે છે અને એના દ્વારા આ બધું શીખવાનું છે. સ્ટડી સર્કલ દ્વારા આ બધી પ્રવૃત્તિ આપણે પ્રાપ્ત કરવાની છે. પપ્પાની સાથે કેમ વાત કરવી, મમ્મીની સાથે કેમ વાત કરવી, પરિવારમાં કેવી રીતે રહેવું. ઘરેથી આપણે અહીંયા સુધી આવીએ તો આપણા મમ્મી પપ્પા છે એના ભરોસો આપણા ઉપર મૂકેલો છે, એ ભરોસાને આપણે કઈ રીતના સિદ્ધ કરવો, આ બધી બાબત છે એ આપણે શીખવાની. અને એ ત્યારે જ આપણે શીખી શકીએ કે કોલેજના દરેક પ્રવૃત્તિની અંદર આપણે વ્યવસ્થિત રીતે ભાગ લઈએ. હમણાં તમને ખબર નહીં પડે, ધીમે 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 તમે FY SY TY 3 વર્ષ પૂરા કરશો, પછી માની લો કે માસ્ટર ડિગ્રી પૂરી કરી લેશો એટલે તમારી અંદર એક પ્રકારનો ચેન્જ આવશે જો તમે આવી બધી પ્રવૃત્તિમાં ભાગ લીધેલો હશે તો. અને એનો હું સાક્ષી છું. આ બધી પ્રવૃત્તિમાં ભાગ લેવાથી શું થાય, કારણ કે અમે તો ગામડાની કોલેજમાં ભણ્યા હતા, પણ જેવા માસ્ટર ડિગ્રી કરવા ગયા રાજકોટ અને ત્યાં બધા અધ્યાપકોને જોયા ત્યારે ખબર પડી કે ડિસિપ્લિન કોને કહેવાય ને. બાકી તો કોલેજમાં આપણે મન પડે ત્યારે જતા હોય, મન પડે ત્યારે આવતા હોય, પણ એનાથી જે પરિવર્તન આવ્યું, મને પોતાને કોઈ ઓફિસમાં જાઉં તો રજા લેવાની એવી ટેવ નહોતી, પણ એ પરિવર્તન ક્યારે આવશે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ તમને કહેશે કે ભાઈ આ રીતના તમારે ન રહેવાય. આવું બધું આપણે છે એ શીખવાનું છે અને એના માટેની આ સ્ટડી સર્કલની 1 કલાક, એ કલાક દ્વારા આપણે ઘણું બધું મેળવીએ. જો એક વ્યક્તિ પાસે મોબાઈલ હશે, બીજી વ્યક્તિ પાસે મોબાઈલ હશે, ત્રીજી વ્યક્તિ પાસે મોબાઈલ હશે, એની ઉપયોગિતા અલગ અલગ હશે. ટીવી બધાના ઘરે હશે, ચેનલ અલગ અલગ જોવાતી હશે. અભ્યાસ તમે બધા કરો છો, બધા કોમર્સમાં છે, પણ દરેકનું મગજ અલગ અલગ હશે. તો તમને શેમાં રસ છે
એમાં તમારે આગળ વધવાનું. માની લો કે મને એકાઉન્ટમાં રસ હતો તો પહેલેથી એકાઉન્ટ ઉપર વધારે ભાર હતો, મારું અંગ્રેજી નબળું હતું. હું મારા એકાઉન્ટને આધારે હું આગળ વધી શક્યો. એમ તમને માની લો કે કોઈ પણ કાવ્યમાં, કાવ્ય લેખનમાં છે, સ્પર્ધામાં, દોડમાં, આવી બધી પ્રવૃત્તિમાં રસ હોય એને તમારે પેલા આગળ, અને એ તમે ત્યારે જ કરી શકો કે આવી જુદી જુદી પ્રવૃત્તિમાં તમે જોડાવ, કોઈ સારા વક્તા આવે એની પાસેથી આપણે કંઈક મેળવી શકીએ. દાખલા તરીકે આપણે, તમને ખ્યાલ હોય તો જાગૃતિ પુરોહિત, એનો એક આપણે લેક્ચર ગોઠવ્યું હતું. એ દીકરીએ શૂન્યમાંથી કઈ રીતના સર્જન કર્યું એની માહિતી આપી હતી, આપણને ખબર પડે. એ જ રીતના ડોક્ટર રાજી વાઘ, એનું એક આપણે વક્તવ્ય ગોઠવ્યું હતું. એ વ્યક્તિ એ જ રીતના પ્રોફેસર કિશન વદિયાણી, આપણે સ્ટડી સર્કલમાં બધાના વક્તવ્ય ગોઠવેલા છે. અને જુદા જુદા મુદ્દાઓને કઈ રીતના રજૂ કરે છે, કેવી રીતે રજૂ કરે છે, એ બધું આપણે જોવાનું કે ભાઈ એ દીકરી ક્યાં હતી. એ માની લો કે રાજી હતી તો આપણી ગુરુકુળની વિદ્યાર્થીની, અત્યારે કેવું બોલી શકે, કઈ રીતના લેક્ચર લઈ શકે, આ બધી એનામાં ટેલેન્ટ આવી કઈ રીતે. તો એ ટેલેન્ટ એનામાં ત્યારે જ આવી હોય કે જ્યારે એને ગુરુકુળની અંદર 3 વર્ષ દરમિયાન જ્યારે અભ્યાસ કર્યો હશે, ત્યારે દરેક પ્રવૃત્તિમાં ભાગ લીધેલો હશે. ભલે ને ક્લાસના સીઆર છે, અને સીઆર ને આધારે તમને ખબર પડે કે નેતૃત્વ કઈ રીતના કરી શકાય. તમે બે દીકરી ગયે હું સરને કહી દઈશ, અને એ તમને સામો જવાબ આપશે, તારે કેવું હોય તો કહી દેજે. એને પછી તમારે હેન્ડલ કરવાની, એને તમારે એવું શીખવાડવાનું બેટા તારે આ રીતના ન બોલાય. એની ફરિયાદ તમારે મારી પાસે કરવાની નથી. તમારે કે ભાઈ તું બેન આ રીતના જવાબ આપે ને એ વ્યાજબી નથી. તું મારી જગ્યાએ સીઆર હોય ને મેં તને આ રીતના જવાબ આપ્યો હોય તો, આવું આપણે એને શીખવાડવાનું. એટલે તમે સીઆર હોય તો તમારી પાસે કોઈ પણ આમ હોદ્દો આવી ગયો હોય એવું તમારું વર્તન ન હોવું જોઈએ. તમારે બીજા પાસેથી કામ લેવાનું. આવી બધી બાબતો છે એ આપણા સ્ટડી સર્કલની સાથે જોડાયેલી છે. તમે દરેક પ્રવૃત્તિ હોય એનું મૂલ્યાંકન કરો કે ભાઈ આપણું પહેલું સ્ટડી સર્કલ હતું એમાં આપણે કઈ પ્રવૃત્તિ કરી હતી, બીજા સ્ટડી સર્કલમાં આપણે કઈ પ્રવૃત્તિ કરી. કુલ આપણે 8 સ્ટડી સર્કલ દ્વારા પ્રવૃત્તિ થઈ, અને આપણે 9મું, એમાં એક આપણે અંગ્રેજી મીડિયમ વાળા કહી દીધું. તો દરેકમાં આપણે કંઈક ને કંઈક નવું લઈ આવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. આજે હું એફઆઈ બીકોમના વિદ્યાર્થીની સાથે જોડાયેલો હતો તો ઘણી બધી દીકરીઓએ કીધું કે ભાઈ અમારે સ્કૂલમાં આવી પ્રવૃત્તિ ન થતી, અત્યારે આ પ્રવૃત્તિ થાય અમને મજા આવે. બસ તમારો મજા શબ્દ છે ને એ અમારી શક્તિની અંદર વધારો કરે છે. તમને મજા આવવી જોઈએ. પછી અમે જ વિચારીએ એવું મગજમાં નહીં રાખવાનું. સ્ટડી સર્કલમાં તમને એમ થતું હોય કે સર હવે આવતા સ્ટડી સર્કલમાં છે ને તમે આ પ્રવૃત્તિ ઉપર રાખો ને તો અમને બધાને મજા આવશે, અમે એ પ્રવૃત્તિ પણ ગોઠવશું. કારણ કે અમારે શું થાય, તમને મજા આવવી જોઈએ, અને તમને તમને માનસિક રીતે પણ મજા આવે, શારીરિક રીતે પણ મજા આવે, અને તમે કંઈક ને કંઈક એની અંદરથી મેળવી શકો, ઉત્સાહપૂર્વક જોડાઈ શકો, એવો અમારે પ્રયત્ન કરવો. એના માટે તમારા સૂચનો એ આવકાર્ય છે. અમે તો શું થાય અમારા લેવલથી વિચારતા હોય, ઘણી વખત તમારા મગજની અંદર કંઈક એવો નવો મુદ્દો આવે. દાખલા તરીકે અત્યારે આજે ટેલીનો છે ને તો અમે મેડમે મને મુદ્દો આપ્યો, મને સારી કે આપણે બધાને આ રીતનું ટેલીના ઓલાનો વિડીયો બતાવીએ તો સારો વિચાર છે, આપણે લઈ લીધો. કારણ કે એનાથી તમને બધાને કંઈક ઉપયોગી થશે. એમ તમારી અંદર કોઈ એવો વિચાર હોય તો તમે અમી મેડમની સાથે શેર કરો, પ્રણાલી મેડમની સાથે શેર કરો, મને શેર કરો. મારાથી થોડા ગભરાતા હોય તો અમી મેડમને તમે મોકલો કે મેડમ આવતા સ્ટડી સર્કલમાં આપણે આવું કંઈક કરીએ તો. કારણ કે તમે રૂબરૂ આવશો ને ત્યારે તમારા વિચારોને અમે આપણે કરી શકશું ક્લાસમાંથી. અત્યારે આપણે તમારા વિચારોની આપણે નથી કરી શકતા. એટલે એમ સ્ટડી સર્કલની જે ઉપયોગિતાઓ છે એ ઉપયોગિતાઓને સારી રીતે આપણે પાર પાડીએ, સારી રીતે જોડાઈએ. તો વધારે સમય નથી લેતો ને તો અમી મેડમને જે વિડીયો બતાવવાનો છે ને એનો સમય વધારે લેવાઈ જશે. એટલે બધા સારી રીતે જો, અને સારી રીતે વિડીયોને જોઈ એમાં શું કહેવા માંગે છે, કયા કોર્સ આપણે કરી લેવા જોઈએ, વેકેશન દરમિયાન કે અત્યારે ઓનલાઈન કોઈ એવા કોર્સ હોય તો એમાં આપણે જોડાઈ જવું જોઈએ. બરોબર. અને ઘણી બધી દીકરીઓ તમે જોડાવજો. અમે કંઈક મૂકેલું હોય તો સર્ટિફિકેટ એટલા બધા આવવા માંડે છે ને એટલે અમને આનંદ થાય.
કે તમે એમાં જોયા અને એનાથી તમારા જનરલ નોલેજનો વધારો થશે હો. ઘણા બધા પ્રશ્નો એવા આવે ને વારંવાર રિપીટ થાય. શરૂઆતમાં તો હું ઘણા બધામાં જોડાતો પણ હવે સમયના અભાવે ક્યારેક ક્યારેક જોડાઈ શકતા નથી એટલે તમે બધાએ મને એટલી ઘડી સાંભળ્યો એ બદલ બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે અમી મેડમને હેન્ડ ઓવર કરું. નમસ્તે સ્ટુડન્ટ. તમે જે રીતે ખબર છે એ રીતે નમસ્તે. મેં તમને સવારમાં મેસેજ કરેલો હતો ગ્રુપમાં કે આજના આપણા સ્ટડી સર્કલની એક્ટિવિટીમાં આપણે કઈ આજે શું બતાડવાનું છે. તો મેં તમને એમાં જેમ મેસેજ કીધેલો હતો એમ કે આપણે ટેલી ERP 9 વિશે આજે માહિતી મેળવવાની છે. એમાં તમને લોકોને બધાને ખબર છે કે આપણે બધા કોમર્સના સ્ટુડન્ટ છીએ તો જરૂરી નથી કે આપણે કોઈ પણ સ્ટુડન્ટ છે જેને જેમાં રસ હોય એ મુજબ આગળ વધતા હોય છે બરોબર. તો તમારામાં અમુક સ્ટુડન્ટ્સ હોય છે જેને એકાઉન્ટન્ટ બનવામાં રસ છે અથવા તો આપણે કોમર્સના સ્ટુડન્ટ છીએ તો એટલા માટે થઈને પણ આપણી પાસે ટેલીની માહિતી હોવી જરૂરી છે બરોબર છે. તો ટેલી ERP 9 એ નામનું એક સોફ્ટવેર છે જે ભારતમાં સૌથી વધારે ઉપયોગી બનતું સોફ્ટવેરમાં તેનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે. તો હવે આપણે ટેલી ERP 9 વિશે તમામ માહિતી મેળવવાની છે કે એમાં કઈ રીતે એન્ટ્રી કરવામાં આવે છે, ક્યાં લેઝર હોય છે, ટેલી ERP છે તે કેવા કેવા એકાઉન્ટ્સ તેમાં હોય છે, કેના માટે તે વપરાય છે, આવી બધી માહિતી તમને આજે આપવાની છે. તો બધા શાંતિથી જોડાયેલા રહે અને આ તમને જે માહિતી આપવામાં આવે છે તે ધ્યાનપૂર્વક સાંભળે કેમ કે તમને ભવિષ્યમાં ખૂબ જ ઉપયોગી થવાની છે. તો બધા હવે જોજો. થેન્ક યુ. वेलकम टू सिटी कॉमर्स एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। सबसे पहले तो मैं अपने सभी व्यूवर्स को थैंक यू कहूंगा जिनसे पिछले 6 सालों में हमें इतना प्यार मिला। और हमारी ये क्लास भी बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये इंस्पायर्ड है उस क्लास से जिसको हमने 6 साल पहले 2014 में अपलोड किया था। आज तक इस क्लास को 8 मिलियंस टाइम देखा जाए, लेकिन इस क्लास को शुरू करने से पहले आप अपने आप से कुछ क्वेश्चन जरूर पूछिएगा, जैसे कि टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को आप क्यों सीखना चाहते हो। और अगर आपका आंसर है अकाउंटिंग लिखने के लिए, तो एक बात आप खास तौर पे ध्यान रखना, जितनी ज़्यादा हमें अकाउंटिंग की नॉलेज होगी उतने ही बेहतर ढंग से हम टैली पे भी काम कर पाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन, टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को आप किस हद तक सीखना चाहते हो। इसे सीखने के बाद आप एज ए डाटा एंट्री ऑपरेटर काम करना चाहते हो या एज ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट। और अगर आप ये चाहते हो कि आप भी एक हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल की तरह काम करो, तो इस क्लास को एंड तक बड़े ध्यान से जरूर देखना। आपको लगभग उन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे जो आपके दिमाग में हैं। एक क्वेश्चन और भी है जिसे खास तौर पे नॉन बीकॉम स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या मैं भी टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को सीख सकता हूँ। देखिए, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा ये बात आपको खुद पता चल जाएगी कि बीकॉम की पढ़ाई का और प्रोफेशनल अकाउंटिंग का बहुत ज़्यादा डीप रिलेशन नहीं है। बस कुछ बेसिक काम होते हैं जिनको हमें पहले सीखना होता है। इनकी डिटेल भी आपको हमारी इस क्लास में ही मिल जाएगी। हम भी अपनी एकेडमी में पिछले 20 सालों में थाउजेंड्स ऑफ ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं जिनकी कोई भी अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं थी, और आज उनमें से बहुत सारे पर मंथ इन लैक्स कमाते हैं। देखिए, ये क्लास हमने स्पेशली डिज़ाइन की है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि बिगनर लेवल पे हैं, और अगर किसी काम की शुरुआत एक सही और टेक्निकल तरीके से की जाए तो आप अभी सोच भी नहीं सकते कि आप कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफेक्शन हासिल कर सकते हो। वैसे तो हमारी इस क्लास का टारगेट है टैली, लेकिन इस सॉफ्टवेयर पे काम करने के लिए हमें अकाउंटिंग की नॉलेज होनी जरूरी होती है। इस क्लास में हम टैली के साथ साथ उन सारी बातों को भी डिस्कस करते चलेंगे जिनको हमें सीखना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अकाउंटिंग का काम हम कभी भी वीडियो या फिर क्लासेस को सिर्फ देखने से नहीं सीखते, बल्कि काम को सीखने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और प्रैक्टिस करने के लिए हमें प्रोफेशनल लेवल का डाटा चाहिए और साथ में सॉफ्टवेयर चाहिए। लेकिन यहाँ आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस के लिए टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को कैसे अरेंज करें इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, और साथ में आपको प्रोफेशनल लेवल का डाटा भी प्रोवाइड करेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। और अपने इस ट्रेनिंग सेशन में भी हम प्रैक्टिकल करते करते ही टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को सीखेंगे, जिसके लिए एक बिजनेस की कुछ ट्रांजैक्शन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिसका नाम है राजधानी होम अप्लायंसेस, जो कि डील करता है कंप्यूटर्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में। और अब हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एक बिजनेस में ट्रांजैक्शंस कितने टाइप की हो सकती हैं।
देखिए नॉर्मली हम अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक वो ट्रांजैक्शन जो रेगुलर बेसिस पे होती हैं और कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस हैं जो कभी कभी होती हैं। रेगुलर ट्रांजैक्शन में आती हैं जैसे कि परचेज ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स, प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज, अलग अलग टाइप के बिजनेस एक्सपेंसेस, रिसीट्स और पेमेंट्स। और स्पेशल कैटेगरी में हमने उन ट्रांजैक्शंस को रखा है जो होती तो है बिजनेस में लेकिन कभी कभी, जैसे हमने कोई फिक्स्ड एसेट्स परचेज की, बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस की, कोई लोन लिया, फाइनेंशियल ईयर को ओपन करना, फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग करना, बैलेंस शीट से रिलेटेड काम करना, टैक्सेस डिपॉजिट कराना, रिटर्न्स फाइल करना। और जब हम एक बिगिनर स्टूडेंट्स के लिए स्टेप बाय स्टेप लर्निंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हम रेगुलर ट्रांजैक्शंस को ही सीखेंगे। और अब हम देखते हैं अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन राजधानी होम अप्लायंसेस की उन ट्रांजैक्शंस को जिनको रिकॉर्ड करते करते हम टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस देखते हैं परचेज की। और ये है हमारा इनवॉइस नंबर 1 जिसमें हमने लैपटॉप्स को परचेज किया है। और ये नेक्स्ट इनवॉइस है जिसमें हमने कुछ एलईडी टीवीज को परचेज किया है। उसके बाद बारी आती है सेल्स की। ये इनवॉइस नंबर 1 है जिसमें हमने एक लैपटॉप सेल किया है। उसके बाद इनवॉइस नंबर 2 है जिसमें हमने टीवी सेल किया है। फिर उसके बाद इनवॉइस नंबर 3 है जिसमें भी हमने टीवी सेल किया है। और एक्सपेंसेस की ट्रांजैक्शन में रेंट का बिल है, लैंडलॉर्ड ने हमें रेंट के साथ साथ जीएसटी भी चार्ज की है। और अगर हम रिसीप्ट्स और पेमेंट्स की बात करें तो हमने अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कुछ चेक डिपॉजिट कराए हैं और साथ में कैश भी डिपॉजिट कराया है। और कुछ हमने पेमेंट्स भी की हैं, चेक इशू किए हैं। देखिए जब हम किसी ट्रांजैक्शन को प्रोफेशनल लेवल पे रिकॉर्ड करते हैं तो वहाँ बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें ध्यान रखना होता है। जब एक बिगनर स्टूडेंट ट्रांजैक्शन को फुल इफेक्ट के साथ रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है तो वो ऑलवेज कंफ्यूज हो जाता है। और इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि अकाउंटिंग को हम स्टेप बाय स्टेप ही सीखें। टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को सीखने में भी सबसे बड़ा चैलेंज का फीचर ऑप्शनल है, यानी इस सॉफ्टवेयर को परफेक्शन के साथ सीखने में भी बहुत बड़ा रोल इसके सीक्वेंस का ही रहेगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए साथ में एक फ्रेशर स्टूडेंट्स की जरूरतों को समझते हुए हमने इस ट्रेनिंग सेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हमारी ट्रेनिंग रहेगी बिगिनर लेवल की, फिर इंटरमीडिएट लेवल पे हम काम करेंगे और फिर प्रोफेशनल लेवल पे। और स्टेप नंबर 1 यानी बिगनर लेवल में हम सीखेंगे कि टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कंपनी कैसे क्रिएट होती है और इससे रिलेटेड बहुत सी बातें हैं जिनको भी हम डिस्कस करेंगे। साथ में अकाउंट्स की सेटअप कैसे की जाती है, यानी अकाउंट्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। फिर उसके बाद वाउचर एंट्री कैसे रिकॉर्ड की जाती है, कितने टाइप के वाउचर्स होते हैं, टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के फीचर्स हम अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कैसे सेट करें, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स क्या होती है। और इसके साथ हम कुछ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद बेसिक रिपोर्ट्स को देखेंगे कि वो कैसे हम व्यू करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे काम करेंगे जो कि है इंटरमीडिएट लेवल। इसमें अगर हमसे कोई ट्रांजैक्शन करते टाइम मिस्टेक हो जाए वो कैसे रेक्टिफाई होगी, इन्वेंट्री के साथ अकाउंटिंग कैसे लिखी जाती है, शॉर्टकट कीज को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, सेल्स इनवाइस कैसे बनाया जाता है, ओपनिंग बैलेंस हम कैसे डालते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन कैसे होता है, ये सारे पॉइंट्स हम इंटरमीडिएट लेवल पे सीखेंगे। और प्रोफेशनल लेवल में हम सभी ट्रांजैक्शंस को फुल इफेक्ट के साथ रिकॉर्ड करेंगे जिनमें न सिर्फ हम इन्वेंट्री और जीएसटी को इंक्लूड करेंगे बल्कि प्रोफेशनल लेवल की प्रॉपर कल्चर को भी फॉलो करेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि जीएसटी रिटर्न्स कैसे बनती हैं, कुछ एडवांस एंट्रीज की भी हम बात करेंगे। और हमारा काम यहीं पे ख़त्म नहीं होगा, उसके बाद हम बात करेंगे एक्सपर्ट लेवल की। तो चलिए शुरुआत तो हम बिगिनर लेवल से ही करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हैं जो हमें इस लेवल को शुरू करने से पहले पता होनी जरूरी हैं, जैसे कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस को एंट्री सिस्टम पे। इसके साथ साथ हमें कुछ कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी चाहिए जो कि नॉर्मली सबको होती ही है। और इंटरमीडिएट लेवल को शुरू करने से पहले हमें पूरे बेसिक लेवल की नॉलेज हो, साथ में इन्वेंट्री कॉन्सेप्ट की नॉलेज हो और हमें बैलेंस शीट की भी नॉलेज चाहिए। प्रोफेशनल लेवल में ट्रांजैक्शंस को फुल इफेक्ट के साथ रिकॉर्ड करने के लिए न सिर्फ हमें इंटरमीडिएट लेवल तक की प्रॉपर नॉलेज हो बल्कि इसकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। और साथ में जो जीएसटी का कॉन्सेप्ट है, लॉ है, इसके बारे में भी हमें प्रॉपरली पता हो। लेकिन फिलहाल हमें क्या आता है क्या नहीं आता इस बात की हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। करना हमें सिर्फ इतना है कि इस क्लास को बहुत ध्यान से एंड तक देखना है। इस क्लास के दौरान न सिर्फ हम आपको टैली सिखाएंगे बल्कि अकाउंटिंग की बहुत सी बातें भी बताएंगे। और जो हमें अपने आप में कमियां महसूस होंगी उनको हमने कैसे इम्प्रूव करना है इसकी भी हम गाइडेंस आपको देते चलेंगे। देखिए इन तीनों लेवल में प्रैक्टिकली काम करने के लिए हम सेम ट्रांजैक्शन अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन राजधानी होम अप्लायंसेस की ही लेंगे, लेकिन बिगिनर लेवल में ट्रांजैक्शन हम अकाउंट्स ओनली ही रिकॉर्ड करेंगे
और उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल में सेम ट्रांजैक्शंस को हम अकाउंट्स विद इन्वेंट्री मेंटेन करेंगे, और प्रोफेशनल लेवल में उन्हीं सेम ट्रांजैक्शंस को हम विद इन्वेंट्री और साथ में विद जीएसटी यानी फुल इफेक्ट के साथ रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिगिनर्स लेवल यानी स्टेप नंबर 1। और इस लेवल में हम ये मान के चलेंगे कि हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन राजधानी होम अप्लायंसेस जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन जब हम जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं होते तो उस सिचुएशन में हमारे परचेज और सेल्स के इनवॉइस होते कैसे हैं, इसे भी हम एक बार डिस्कस करते हैं। देखिए, ये तो हमारी परचेज का एक नॉर्मल इनवॉइस है। अगर हमारे पास जीएसटी का नंबर नहीं होता तो सप्लायर हमें इनवॉइस कुछ इस तरह से इशू करता, इसमें हमारा जीएसटी नंबर नहीं होता, रिमेनिंग सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ऐसे ही होती। और जब हम इस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री बनाते तो वो कुछ इस तरह से आती, परचेज अकाउंट को हम डेबिट करते, जीतेश कंप्यूटर को हम क्रेडिट करते। और ऐसे ही हमारा ये सेकंड इनवॉइस होता, ये तो नॉर्मल है, विदाउट जीएसटी इनवॉइस कुछ ऐसा होता। और इस इनवॉइस की हम जर्नल एंट्री कुछ इस तरह से बनाते। ये जर्नल एंट्री हमारी स्क्रीन पे है, और इस ट्रांजैक्शन को भी हम ऐसे ही विदाउट इन्वेंट्री रिकॉर्ड करेंगे। और अगर हम इसी तरह सेल्स के इनवॉइसेस की बात करें, देखिए ये तो हमारा नॉर्मल इनवॉइस है, लेकिन अगर हमारे पास जीएसटी नंबर ना होता तो हम टैक्स इनवॉइस नहीं इशू कर पाते, बल्कि हमारा बिल ऑफ सप्लाई इशू होता और उसमें हम टैक्स चार्ज नहीं कर पाते, और फिर इसकी जर्नल एंट्री कुछ इस तरह से बनती। अब इस ट्रांजैक्शन को भी हम विदाउट इन्वेंट्री ही रिकॉर्ड करेंगे। और इसी तरह से सेल्स का इनवॉइस नंबर 2 है, विदाउट जीएसटी नंबर हम बिल ऑफ सप्लाई इशू करते जिसमें टैक्स नहीं होता, और इसकी जर्नल एंट्री कुछ इस तरह से बनती, और इसे भी हम विदाउट इन्वेंट्री ही रिकॉर्ड करेंगे। और ये हमारी सेल्स का इनवॉइस नंबर 3 है, लेकिन ये एक इंटरस्टेट सेल्स है, और अगर हमारे पास जीएसटी नंबर नहीं होता तो इंटरस्टेट सेल्स हम नहीं कर पाते, इस इनवॉइस को हम प्रोफेशनल लेवल पे ही एंटर करेंगे। और इसी तरह से हमारे एक्सपेंसेस में रेंट का बिल है, अगर हमारे पास जीएसटी नंबर नहीं भी होता तो भी हमें जीएसटी लग के ही आती है अगर हमारे लैंडलॉर्ड के पास जीएसटी नंबर है। बट इस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री हम कुछ ऐसे बनाते, इसी को हम रिकॉर्ड करेंगे। और अगर हम अपने बैंक की इन ट्रांजैक्शंस की बात करें, ना तो इनका कनेक्शन इन्वेंट्री के साथ ही है और ना ही इसमें कोई जीएसटी के इफेक्ट हैं, यानी इनको तो हम बिगिनर लेवल पे ही विद फुल इफेक्ट एंटर करेंगे। इनमें से जो चेक और कैश हमने बैंक में डिपॉजिट कराए हैं उनकी जर्नल एंट्री कुछ इस तरह से है, और जो हमने चेक इशू किए हैं उनकी जर्नल एंट्री कुछ इस तरह से है, यानी इन ट्रांजैक्शंस को हम ऐसे ही रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए इन सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम ओपन करते हैं टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। देखिए, ये है टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की ओपनिंग स्क्रीन। इसमें हमें दो मेन ऑप्शन दिखाई देंगे, एक सिलेक्ट कंपनी और दूसरा क्रिएट कंपनी। वैसे तो टैली इंटरफेस की हर स्क्रीन में हमें बहुत सारे बटन यानी ऑप्शन दिखाई देंगे, लेकिन इन सब को एक साथ नहीं सीखा जा सकता। हम भी इनको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली स्टेप बाय स्टेप करके ही सीखेंगे। इनमें से मैंडेटरी और बेसिक फीचर्स को हम सीखेंगे अपने बिगनर लेवल में, और फिर अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंगली कुछ फीचर्स हम इंटरमीडिएट और कुछ प्रोफेशनल लेवल पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं, इसका सीक्वेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अगर हम इसे बहुत इजी वे में परफेक्शन के साथ सीखना चाहते हैं। अब जैसे इस प्राइमरी इंटरफेस में भी सबसे पहले हमें दो ही ऑप्शन को समझना है, एक सिलेक्ट कंपनी और दूसरा क्रिएट कंपनी। इनमें से सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन को हम उस सिचुएशन में यूज करते हैं जब कंपनी हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड होती है, अदरवाइज नई कंपनी के केस में सबसे पहले हम इसे क्रिएट करेंगे। तो चलिए सीखते हैं सबसे पहला स्टेप, यानी कंपनी कैसे क्रिएट होती है। और इस प्रैक्टिकल के लिए हमारी कंपनी का नाम है राजधानी होम अप्लायंसेस, जिसे हम फिल करेंगे यहाँ कंपनी नेम में, और मेलिंग नेम में भी हमारी कंपनी का नाम ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है एड्रेस, जिसको हम प्रॉपरली फिलअप करेंगे, और यहाँ हमारी जो कंट्री और स्टेट है इसे भी हमें प्रॉपरली यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। और इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल को हम फिलअप कर सकते हैं। और अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम है फाइनेंशियल ईयर, जिसे हम बहुत केयरफुली फिलअप करेंगे, और हमारे केस में यह है 1 अप्रैल 2020। और इसमें नेक्स्ट कॉलम है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। देखिए, नॉर्मली जिस डेट को हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है उसी डेट को हमारी अकाउंट्स बुक्स भी बिगिन होती हैं, लेकिन सिर्फ उन सर्कमस्टांसेस में जब कोई नई कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है। सपोज करो कोई कंपनी 1 जुलाई को एग्जिस्टेंस में आई, तो वहां पे बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम 1 जुलाई रहेगी, लेकिन हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल ही रहेगा। अदरवाइज रिमेनिंग सभी केसेस में इन दोनों कॉलम्स में डेट 1 अप्रैल ही रहेगी। और अब इसमें नेक्स्ट कॉलम है सिक्योरिटी कंट्रोल, जिसमें हम यूजर एंड पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं अगर हमें रिक्वायर्ड हो। उसके बाद है बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन, जिसमें इंडिया के अकॉर्डिंगली सारे कॉलम्स बाय डिफॉल्ट ही फिलअप रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ कोई चेंजेस करना चाहें तो वो हो सकती है। इसमें मेनली कॉलम है हमारा करेंसी सिंबल क्या है, उसका फॉर्मल नेम क्या है, क्या अमाउंट के साथ हम सिंबल सुफिक्स करना चाहते हैं,
अमाउंट को हम मिलियंस में तो शो नहीं करना चाहते। डेसिमल प्लेस कितने रहेंगे, डेसिमल प्लेस के बाद जो वैल्यू है उसका नाम क्या रहेगा। टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हम मल्टी करेंसी में काम कर सकते हैं और यहाँ पे वैल्यूज हमें तभी सेट करने की जरूरत पड़ती है जब हम किसी फॉरेन करेंसी में काम करते हो। और जब ये सारी इंफॉर्मेशन फिलअप हो जाती है तो हमारे पास ऑप्शन आता है इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करने का। जितनी इंफॉर्मेशन अभी तक हमने फिलअप की है, कुछ भी इंफॉर्मेशन हमारी हार्ड डिस्क पे सेव नहीं हुई, यहाँ इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करने का मीनिंग रहेगा सेव टू हार्ड डिस्क। और एक्सेप्ट करने के लिए कीबोर्ड पे हम एंटर प्रेस कर सकते हैं और नो के लिए एस्केप कर सकते हैं और यहाँ हम माउस का इस्तेमाल करके भी इसे सेव कर सकते हैं। और इन दिस वे हम देख सकते हैं हमारी कंपनी अब क्रिएट हो चुकी है। और अब हमारे पास ये स्क्रीन है गेटवे ऑफ टैली। देखिए यही हमारी मेन स्क्रीन है, यही हमारी मेन विंडो है जिसमें हमारे को हर टाइप के ऑप्शंस मिलेंगे, यानी सारे फीचर्स सारे ऑप्शंस यहीं से ही नेविगेट होंगे। देखिए अब कंपनी क्रिएट करने के बाद लेकिन कोई भी काम शुरू करने से पहले हमारा पहला काम रहता है कि टैली के फीचर हम अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सेट करें। और ये फीचर्स भी 3 पार्ट में डिवाइडेड हैं जिसमें अकाउंटिंग फीचर्स हैं, इन्वेंट्री फीचर्स हैं, स्टैट्यूटरी फीचर्स हैं। लेकिन बिगनर लेवल पे हम बात करेंगे अकाउंटिंग फीचर्स की। और यहाँ हमें उन सारे फीचर्स की डिटेल मिलेगी जो हम अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली यस नो कर सकते हैं। देखिए बाय डिफॉल्ट इसमें कुछ यस होते हैं कुछ नो, लेकिन आप अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इन फीचर्स को सेट कर सकते हो। जैसे कि अपने इस बिगनर लेवल में हम अकाउंट्स ओनली ही मेंटेन करेंगे, इन्वेंट्री बुक्स हम यहाँ पे मेंटेन नहीं करेंगे। और उसके लिए हमारा जो सबसे पहला फीचर है मेंटेन अकाउंट्स ओनली, इसे हम यस पे सेट करेंगे। और इस तरह से हमारी कंपनी अकाउंट्स ओनली में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसके अलावा जितने रिमेनिंग फीचर्स हैं इनको भी हम अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। अदरवाइज इसे हम डिफॉल्ट वैल्यू के साथ भी सेव कर सकते हैं। देखिए अब कंपनी हमारी क्रिएट हो चुकी है, फीचर हम उसके अकॉर्डिंगली सेट कर चुके हैं। और अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट काम रहेगा हम अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अकाउंट्स क्रिएट करें। और अकाउंट्स क्रिएट होंगे मास्टर्स के अकाउंट्स इन्फो ऑप्शन में। और अब हमें यहाँ पे जाना होगा लेजर्स में, क्योंकि जो अकाउंट्स क्रिएट होते हैं वो हमेशा लेजर में ही होते हैं। और अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो ये लेजर की ही कम्युनिटी होती है जिसके अंडर बेसिकली हम अकाउंट ओपन करते हैं। लेकिन टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में पहले से ही बाय डिफॉल्ट सफिशिएंट ग्रुप्स ऑलरेडी क्रिएटेड रहते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली नए ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज हमें अननेसेसरली ग्रुप्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती। तो चलिए अब हम अकाउंट्स क्रिएट करने के लिए लेजर पे क्लिक करते हैं और यहाँ हमें 2 ऑप्शन मिले हैं, सिंगल लेजर मल्टीपल लेजर। देखिए सिंगल लेजर में हम अकाउंट्स 1 बाय 1 करके क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल लेजर में कई अकाउंट्स हम एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए हमेशा रिकमेंडेड रहेगा कि हम अकाउंट्स को सिंगल लेजर में ही क्रिएट करें। जो अकाउंट्स हमने यहाँ पे क्रिएट करने हैं उनकी लिस्ट के लिए एक बार फिर से हम अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को देखते हैं। देखिए हमें कौन कौन से अकाउंट क्रिएट करने होते हैं, इनकी लिस्ट हमें हमेशा जर्नल एंट्री से ही मिलती है। जैसे ये हमारे परचेज के इनवॉइस नंबर 1 की जर्नल एंट्री है जिससे रिलेटेड 2 अकाउंट हैं, एक परचेज अकाउंट और दूसरा जितेश कंप्यूटर ट्रेडर्स। और ये दूसरा बिल है जिसका परचेज अकाउंट तो पहली ट्रांजैक्शन की वजह से ही क्रिएट हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा अकाउंट है वीडियो मैक्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, इसे हम क्रिएट करेंगे। उसके बाद इन्हीं दोनों ट्रांजैक्शंस को हम पहले रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्रिएट करते हैं परचेज अकाउंट। अब जो अकाउंट हमें क्रिएट करना होता है उसके जो भी डिसाइडेड स्पेलिंग है उसे हम यहाँ नेम में एंटर करते हैं। और उसके बाद हमें सिलेक्ट करना होता है इसका रिलेटेड ग्रुप। देखिए ये हमारे पास ग्रुप्स की लिस्ट है, इसमें से जो भी इस अकाउंट का रिलेटेड ग्रुप है उसके अंडर ही हम इसे क्रिएट करेंगे। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है क्योंकि इसी के जरिए सॉफ्टवेयर को ये पता चलता है कि जो हमने अकाउंट क्रिएट किया है उसका क्या मीनिंग है। वो अकाउंट किसी सप्लायर का है, कस्टमर का है, परचेज का है, सेल्स का है। यानी जो अकाउंट्स के हमने स्पेलिंग यहाँ पे एंटर किए उसे रीड करने की कैपेबिलिटी सॉफ्टवेयर में नहीं होती। और इसी ग्रुप्स के जरिए ही अकाउंट नेविगेट होता है और अकॉर्डिंगली वो रेलिवेंट रिपोर्ट्स में रिफ्लेक्ट होता है। और हमारे इस अकाउंट के लिए परचेज का अपने आप में इंडिपेंडेंट एक ग्रुप है जिसके अंडर ही हम इस अकाउंट को क्रिएट करेंगे। देखिए एक बात और हमें स्पेसिफिकली ध्यान रखनी है, जब हम अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हमें इसमें बहुत सी फील्ड दिखाई देती हैं, लेकिन इनमें से 2 ही मैंडेटरी हैं, एक अकाउंट का नाम और दूसरा ग्रुप। रिमेनिंग सारी फील्ड ऑप्शनल होती हैं। नॉर्मली हम उन्हें तभी फिलअप करते हैं जब कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो। तो चलिए अब इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करके हम अकाउंट को सेव कर देते हैं। और अब हम क्रिएट करेंगे नेक्स्ट अकाउंट जो कि है हमारे सप्लायर जीतेश कंप्यूटर ट्रेडर्स का। और इस अकाउंट को हम क्रिएट करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप में, क्योंकि अकाउंटिंग की लैंग्वेज में सप्लायर्स को हम सन्ड्री क्रेडिटर बोलते हैं। और इसमें जो एड्रेस वगैरह के कॉलम है इनकी जरूरत हमें तब पड़ती है जब हम टैक्सेशन का काम करते हैं, अदरवाइज हम इसे ऐसे ही सेव कर सकते हैं। और अब हमारा नेक्स्ट अकाउंट भी सप्लायर का ही है जिसका नाम है वीडियो मैक्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। और इस अकाउंट को भी हम सन्ड्री क्रेडिटर के अंडर ही क्रिएट करके सेव करेंगे।
और अब अकाउंट्स क्रिएट करने के बाद सबसे पहले हम इन्हीं 2 ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और उसके लिए हम एक बार फिर से गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे और ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने यानी वाउचर एंट्री के लिए जो हमारे पास ऑप्शन है वो है अकाउंटिंग वाउचर। इस पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं देखिए ये हमारी स्क्रीन आ जाएगी। अब देखिए टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में डिफरेंट टाइप की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए कुल मिला के 6 मेन वाउचर टाइप्स हैं, जैसे कि कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीप्ट्स, जर्नल, सेल्स और परचेज। और इनमें से कॉन्ट्रा वाउचर टाइप के अंडर ट्रांजैक्शन हम उस सिचुएशन में रिकॉर्ड करते हैं जब हम या तो अपने ही बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट कराते हैं या फिर विड्रॉल कराते हैं या अपने एक बैंक अकाउंट से पैसे दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। यानी इस ऑप्शन के अंडर हमारे सिर्फ बैंक और कैश ये ही 2 अकाउंट यूज हो सकते हैं। और पेमेंट ऑप्शन उस सिचुएशन में यूज होता है जब हम किसी को या तो कैश की पेमेंट करते हैं या फिर अपने बैंक से चेक इशू करते हैं। यानी इस ऑप्शन के अंडर कैश या बैंक में से एक अकाउंट क्रेडिट होना कंपलसरी है। रिसीप्ट्स ऑप्शन हम तब यूज करते हैं जब हमें या तो किसी से कैश रिसीव्ड होता है या फिर हम बैंक में चेक डिपॉजिट कराते हैं। यानी इस ऑप्शन के अंडर कैश या बैंक में से एक अकाउंट डेबिट होना कंपलसरी होता है। और नॉर्मली जर्नल वाउचर टाइप के अंडर हम उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो ट्रांजैक्शन जो हमारे दूसरे 5 वाउचर टाइप्स हैं उनसे बिलोंग ना करती हूं। एग्जांपल के तौर पे क्रेडिट एक्सपेंसेस की ट्रांजैक्शंस, फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, ट्रांसफर वाउचर्स, एडजस्टमेंट एंट्रीज। और जब हम ट्रेडिंग गुड्स को सेल्स करते हैं तो हमारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है सेल्स वाउचर टाइप में। और जब ट्रेडिंग गुड्स परचेज की जाती हैं तो हमारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है परचेज वाउचर टाइप में। यानी जिस ट्रांजैक्शन को अभी हम रिकॉर्ड करेंगे वो है ट्रेडिंग गुड्स परचेज करने से रिलेटेड और ये रिकॉर्ड होगी परचेज ऑप्शन में। तो चलिए अब इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम इसका वाउचर टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं। और वाउचर टाइप सेलेक्ट करने के लिए या तो हम माउस से यहाँ पे क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड से हम इन शॉर्टकट कीज को भी यूज कर सकते हैं जिसमें से परचेज का F9 है और बाकी भी यहाँ पे मेंशन है। और अब हम यहाँ देख सकते हैं हमारी ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंगली परचेज वाउचर टाइप सेलेक्ट हो चुका है। अब इस ट्रांजैक्शन को हम 2 मेथड से रिकॉर्ड कर सकते हैं, एज वाउचर भी, एज इनवाइस भी। देखिए जब हम विद इन्वेंट्री काम करते हैं तो वहाँ एज इनवाइस हमारे लिए ज़्यादा सुटेबल रहता है और जब हम विदाउट इन्वेंट्री काम करते हैं तो हमारे लिए कहीं ना कहीं एज वाउचर ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट रहता है। वैसे इस क्लास में हम इन दोनों ही मेथड को यूज़ करेंगे। अभी हम एज वाउचर यूज़ करते हैं और जब हम इन्वेंट्री के साथ काम करेंगे तो एज इनवाइस यूज़ करेंगे। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले हम सेट करेंगे डेट और उसके लिए हम जस्ट यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से F2 प्रेस कर सकते हैं। यानी जो डेट हम यहाँ पे सेट करेंगे उसी डेट में हमारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। और अब इसमें नेक्स्ट फील्ड है सप्लायर इनवॉइस नंबर और साथ में उसकी डेट। देखिए जब हम जीएसटी का काम करते हैं तो इसमें इन्फॉर्मेशन कंपलसरी होती है। इस ट्रांजैक्शन में तो इनवॉइस नंबर को हम नरेशन में मेंशन कर देंगे। और अब इसमें नेक्स्ट फील्ड है क्रेडिट अकाउंट। देखिए एक बात और हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, जब आप टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे तो कई बार यहाँ आपको डेबिट क्रेडिट की बजाय 2 बाय दिखाई देगा और आप इसे अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। और उसे सेट करने के लिए जस्ट आप यहाँ कॉन्फ़िगर पे क्लिक करोगे तो इसमें हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। इसमें जो सेकंड नंबर पे ऑप्शन है देखिए यहाँ पे लिखा है यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ 2 बाय। और अगर आप इसमें नो रखते हो तो 2 बाय आएगा और अगर आप यस रखते हो तो डेबिट क्रेडिट आएगा। वैसे इस ऑप्शन को आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो, लेकिन मैं ऑलवेज रिकमेंड करता हूँ डेबिट क्रेडिट। चलिए अब हम अपनी ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंगली क्रेडिट अकाउंट को सिलेक्ट करते हैं जो कि हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। यहाँ इस सिलेक्शन लिस्ट में से जैसे हम सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। उसके बाद जो हमारी ट्रांजैक्शन का अमाउंट है उसे हम एंटर करेंगे। उसके बाद डेबिट में हमारा परचेज अकाउंट आएगा, उसका अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा और फिर हम नरेशन में उसका इनवॉइस नंबर एंटर करेंगे। एंड इन दिस वे हम देख सकते हैं देखिए हमारी कंप्लीट ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुकी है। और अब इस ट्रांजैक्शन को सेव करने के लिए हम इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करेंगे। तो चलिए अब हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन और इस ट्रांजैक्शन की डेट है 2 अप्रैल, उसे हम सेट करेंगे। उसके बाद जो हमारा क्रेडिट अकाउंट है उसमें आएगा वीडियो मैक्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, अमाउंट हम यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद आएगा हमारा परचेज अकाउंट एंड यहाँ पे हम नरेशन को टाइप करके इस ट्रांजैक्शन को भी सेव करेंगे। तो कुल मिला के ये मेथड रहेगा परचेज की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का। और अब हम बात करेंगे सेल्स की ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड होंगी। और सेल्स इनवाइसेस को हम एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हमारा पहला इनवाइस है और उसके बाद ये हमारा सेकंड इनवाइस है, इन्हीं को हम रिकॉर्ड करेंगे। और अब इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का प्रोसेस हमारा अगेन वही रहेगा। सबसे पहले हम रिक्वायर्ड अकाउंट्स ओपन करेंगे और उसके लिए हम अकाउंट्स इन्फो के लेजर ऑप्शन में चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्रिएट कर लेते हैं सेल्स अकाउंट और ये अकाउंट क्रिएट होगा अंडर ग्रुप सेल्स क्योंकि यही ग्रुप स्पेसिफिकली सेल्स के लिए है। और अब हम अपने कस्टमर का अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम है डिजिटल कंप्यूटर सॉल्यूशन और ये अकाउंट क्रिएट होगा अंडर ग्रुप सन्ड्री डेबिटर क्योंकि अकाउंट्स की लैंग्वेज में हम अपने कस्टमर को सन्ड्री डेबिटर्स बोलते हैं।
तो चलिए अब अकाउंट्स क्रिएट करने के बाद हम अपनी सेल्स की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसके लिए हम अगेन चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। और इसमें सबसे पहले हम सेट करेंगे अपना वाउचर टाइप जो कि है सेल्स। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा हम अपनी डेट सेट करेंगे और डेट हमारी है 1 अप्रैल। और सेल्स की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए भी हमारे पास दो मेथड अवेलेबल हैं। हम एज वाउचर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, एज इनवाइस भी। और अभी इस ट्रांजैक्शन को हम एज वाउचर रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये हमारा इनवाइस है जिसे हम रिकॉर्ड करेंगे। और इसमें सबसे पहले हम एंटर करेंगे अपना डेबिट अकाउंट यानी हमारे कस्टमर का अकाउंट जो कि है डिजिटल कंप्यूटर। उसके बाद इसमें इसका डेबिट अमाउंट आएगा। फिर हम सेल्स अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, अमाउंट आएगा। उसके बाद हम इसकी नरेशन यहाँ पे टाइप करके इस ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट करेंगे। और अब हम अपनी सेल्स की नेक्स्ट ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। और इस ट्रांजेक्शन की डेट है 2 अप्रैल, उसे हम सेट करेंगे। और यहाँ पे जो डेबिट अकाउंट है वो कैश रहेगा, इसमें हम इसका अमाउंट डाल लेंगे। उसके बाद हम क्रेडिट सेल्स अकाउंट को करेंगे और ये नरेशन टाइप करने के बाद हम इसे सेव करेंगे। और अब हमारे सेल्स के इनवाइसेस भी रिकॉर्ड हो चुके हैं। और अब हम बात करेंगे एक्सपेंसेस की। हमारा एक रेंट पेमेंट का बिल है, इसे हम एक बार देख लेते हैं। और इस ट्रांजेक्शन को चलिए अब हम रिकॉर्ड करते हैं। प्रोसीजर अगेन वही रहेगा। सबसे पहले हम रिक्वायर्ड अकाउंट्स क्रिएट करेंगे और यहाँ हमारा पहला अकाउंट है रेंट, उसे हम क्रिएट कर लेते हैं। और ये क्रिएट होगा अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए वैसे तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन ये इनडायरेक्ट नेचर का है तो इसे हम अकॉर्डिंगली ही क्रिएट करेंगे। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट अकाउंट है हमारे सप्लायर का जिसका नाम है मिस्टर इंडिया। और ये अकाउंट क्रिएट होगा अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर क्योंकि मिस्टर इंडिया हमारा सर्विस प्रोवाइडर यानी हमारा सप्लायर है। चलिए अब इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए अगेन हम चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। और हमारी यहाँ पे ट्रांजेक्शन की डेट रहेगी 1 अप्रैल, उसे हम सेट करते हैं। और इसका जो वाउचर टाइप रहेगा जर्नल रहेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे डेबिट अकाउंट यानी रेंट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसका अमाउंट हम एंटर करेंगे। क्रेडिट अकाउंट में हमारे सप्लायर का अकाउंट आएगा। उसके बाद हम यहाँ पे नरेशन टाइप करते हुए इस ट्रांजेक्शन को भी सेव कर देंगे। और अब हमारी रिमेनिंग ट्रांजेक्शन्स हैं बैंकिंग से रिलेटेड। हमारे बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कैश भी और साथ में चेक भी हमने डिपॉजिट किया है और साथ में चेक से पेमेंट भी की है। चलिए इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले हम अकाउंट क्रिएट करते हैं अपने बैंक का जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ये अकाउंट क्रिएट होगा अंडर बैंक। देखिए वैसे तो बैंक ओसीसी ओडीडी यहाँ पे है, लेकिन जो हमारा करंट अकाउंट है वो बैंक के अंडर क्रिएट होता है। अगर हमारा लोन का कोई अकाउंट है तो फिर हम दूसरे ऑप्शंस यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड इसमें जितनी ये रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन है जो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसे फिल करके हम इस अकाउंट को भी सेव करेंगे। और रिमेनिंग अकाउंट्स हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। चलिए इन ट्रांजेक्शन्स को अब हम रिकॉर्ड करते हैं। और सबसे पहले हम लेते हैं अपनी रिसीप्ट्स की ट्रांजेक्शन यानी जो हमने कैश डिपॉजिट कराया है और चेक डिपॉजिट कराया है। और इनमें से चेक डिपॉजिट की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमारा वाउचर टाइप रहेगा रिसीप्ट्स। और जब हम रिसीप्ट्स और पेमेंट की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने की बात करते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास दो मेथड अवेलेबल हैं, एक नॉर्मल मोड और एक सिंगल एंट्री मोड। और अभी हमारी स्क्रीन सिंगल एंट्री मोड की है और इसे नॉर्मल मोड में कन्वर्ट करने के लिए हम जस्ट यहाँ कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे। यूज सिंगल एंट्री मोड को हम नो पे सेट करेंगे, हमारी नॉर्मल स्क्रीन एक्टिवेट हो जाएगी। और अब इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्रेडिट करेंगे अपने कस्टमर के अकाउंट को जिसका नाम है डिजिटल कंप्यूटर सॉल्यूशन। इसका अमाउंट हम यहाँ पे एंटर करेंगे और डेबिट होगा हमारा बैंक अकाउंट। अमाउंट इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब जो हमने चेक रिसीव हुआ है उसकी डिटेल हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये एडिशनल डिटेल रहती है, जैसे इसमें सबसे पहले चेक नंबर आ जाएगा, फिर चेक की डेट आ जाएगी। एंड उसके बाद यहाँ पे हम नरेशन टाइप करते हुए इस ट्रांजेक्शन को भी सेव कर देंगे। और अब हम रिकॉर्ड करेंगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जिसमें हमने अपने बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कैश डिपॉजिट कराया है और इसका वाउचर टाइप रहेगा कॉन्ट्रा। और इस ट्रांजैक्शन में हम क्रेडिट करेंगे कैश अकाउंट को, उसे हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसका हम अमाउंट एंटर करेंगे और डेबिट अकाउंट हमारा रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और जितनी है हमारी ये रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन है इसे भी हम फिलअप करके उसके बाद नरेशन को यहाँ पे टाइप करके इस ट्रांजेक्शन को भी हम एक्सेप्ट करेंगे। और अब ये कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जिनमें हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अपने सप्लायर्स को चेक इशू किए हैं और ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी पेमेंट वाउचर टाइप में। तो चलिए अब इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले हम डेट सेट कर लेते हैं जो कि है 1 अप्रैल। और जो हमने पेमेंट की है हमारे सप्लायर का नाम है जीतेश कंप्यूटर, तो डेबिट उसका अकाउंट होगा। अमाउंट इसमें हम यहाँ पे एंटर करेंगे जो कि 1 लाख रुपए है। और साथ में क्रेडिट हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हम करेंगे। और उसके बाद जो चेक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसे हम यहाँ एंटर करके नरेशन टाइप करके इस ट्रांजेक्शन को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। और अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन का प्रोसीजर भी वही रहेगा। सबसे पहले हम डेट सेट करेंगे, लेकिन चलिए इस ट्रांजेक्शन को हम सिंगल एंट्री मोड में रिकॉर्ड करते हैं और उसके लिए हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर में जाके सिंगल एंट्री मोड को यस करते हैं। देखिए जो हमारी स्क्रीन है यहाँ पे वो सिंगल एंट्री मोड पे सेट हो जाएगी।
और इसका प्रोसीजर रहेगा, यहाँ हम सबसे पहले उस अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे जिसमें से हमने पेमेंट की है, जो कि हमारा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और उसके बाद हमने जिसको पेमेंट की है उसका अकाउंट सिलेक्ट करेंगे, अमाउंट हम यहाँ एंटर करेंगे और जो चेक से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है उसे हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद नरेशन को टाइप करते हुए हम इस ट्रांजेक्शन को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। देखिए, इस बात से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि हमने ट्रांजैक्शन को कौन से मोड में रिकॉर्ड किया है, बस हमारा डेबिट अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट वो करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंगली ही अकाउंट में ट्रांजैक्शन पोस्ट होगी। अब हमारी सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो चुकी हैं और अब हम किसी भी रिपोर्ट को अगर देखना चाहें तो उसके लिए हम चलेंगे डिस्प्ले ऑप्शन में। यहाँ पे देखिए हमारे पास सभी रिपोर्ट्स अवेलेबल है। अगर हम ट्रायल बैलेंस देखना चाहते हैं तो जस्ट हम उस पर क्लिक करेंगे, ये हमारा ट्रायल बैलेंस अवेलेबल है। इसके हम स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, इसे हम डिटेल कर सकते हैं, लेजर वाइज कर सकते हैं और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ट्रायल बैलेंस के किसी भी अकाउंट पे फर्दर क्लिक करके उसकी आगे डिटेल देख सकते हैं। जैसे अब हमारे पास ये जीतेज कंप्यूटर ट्रेडर्स का अकाउंट है और अगर हम यहाँ नरेशंस भी ओपन करना चाहते हैं उसके लिए जस्ट हम यहाँ कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे और यहाँ एक ऑप्शन हमें मिलेगा शो नरेशंस, इसको हम यस करेंगे। देखिए यहाँ हमारी नरेशंस भी ओपन हो जाएंगी और इसी मेथड से हम किसी दूसरे अकाउंट को भी स्क्रीन पे देख सकते हैं। चलिए हम अपने बैंक अकाउंट को ओपन करते हैं। देखिए इसकी ट्रांजैक्शंस हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे भी हम नरेशंस को ऑन कर लेते हैं और अब हम देख सकते हैं, देखिए सारी ट्रांजैक्शंस हमारी स्क्रीन पे हैं। और अगर हमसे कोई ट्रांजैक्शन गलत रिकॉर्ड हो जाए तो यहीं से हम ड्रिल डाउन करके उस ट्रांजैक्शन तक भी पहुंच सकते हैं। देखिए जैसे ये हमारी कैश डिपॉजिट कराने से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है, इसकी हमसे डेट गलत हुई थी और क्योंकि अब हम इस ट्रांजैक्शन में एडिट कर चुके हैं, जो हमसे मिस्टेक हुई है उसे हम रेक्टिफाई करके अगेन हम इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करेंगे, रेक्टिफिकेशन हो जाएगी। तो ऐसे करके इसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अलग अलग टाइप की हम रिपोर्ट्स देख सकते हैं। हम अगर अपनी सारी ट्रांजैक्शंस को देखना चाहें तो वो हमें डे बुक में भी मिल जाएंगे। हम डे बुक पे क्लिक करते हैं, यहाँ हमारी ट्रांजैक्शन डेट के अकॉर्डिंगली आएंगे। जिस डेट की हमें ट्रांजैक्शन देखनी है उसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो उस डेट की ट्रांजैक्शंस आ जाएंगे। हम यहाँ पे एक रेंज भी फिक्स कर सकते हैं पीरियड पे क्लिक करके। सपोज करो हम अपनी ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल से लेके 2 अप्रैल तक देखना चाहते हैं और अब हम यहाँ देख सकते हैं सारी ट्रांजैक्शंस हमारी स्क्रीन पे है। इसे हम फर्दर डिटेल कर सकते हैं। नरेशंस को ऑन करने के लिए कॉन्फ़िगर पे क्लिक करके शो नरेशंस आल्सो को जैसे हम यस करते हैं, विद नरेशंस ये सारी ट्रांजैक्शंस हमारे पास आ जाएंगी। और यहाँ पे भी अगर हम किसी ट्रांजैक्शंस पे फर्दर एंटर करके इसे ड्रिल डाउन करना चाहें तो ट्रांजैक्शन लेवल तक हम पहुंच सकते हैं और किसी भी ट्रांजैक्शन को हम रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी अकाउंट को रेक्टिफाई करना चाहें तो हम अगेन चलेंगे अकाउंट्स इन्फो में और यहाँ पे जो हमारे पास अल्टर ऑप्शन है इस पे जैसे हम क्लिक करते हैं, जिस भी अकाउंट को हमने रेक्टिफाई करना है वो हमारी स्क्रीन पे आ जाएगा। अगर हमारे अकाउंट के स्पेलिंग गलत है तो उसे भी हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, उसका ग्रुप गलत है तो उसे भी हम अगेन यहाँ पे रेक्टिफाई करके सेव कर सकते हैं। देखिए अपने इस बिगनर लेवल में हमने वो बेसिक और मेन पॉइंट्स डिस्कस किए जिनसे टैली सॉफ्टवेयर को सीखने की हम एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अब हमें जरूरत है कि इन सारे फीचर्स की हम प्रॉपर प्रैक्टिस करें। इन बेसिक लेवल के पॉइंट्स को समझने में कोई दिक्कत है तो उन सब के लिए हमने एक और क्लास अपलोड की है जिसका टाइटल है माय फर्स्ट डे विद टैली। उसमें हमने बेसिक लेवल के इन सारे पॉइंट्स को और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है और साथ में उस क्लास को हमने थोड़ा स्लो भी रखा है। इस क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप हमारे चैनल पेज को भी विजिट कर सकते हो। और इसके अलावा हमारी कुछ स्पेशल क्लासेस भी हैं जिनको हमारे सब्सक्राइबर देख सकते हैं। एक बार आप हमारे चैनल का सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी चेक कर लीजिएगा। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर हमारे किसी स्टूडेंट को ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री बनाने में प्रॉब्लम है या फिर आप एडवांस लेवल की जर्नल एंट्रीज को सीखना चाहते हो तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट onlinecca.com को विजिट करके कोर्स 1 में रजिस्टर करा सकते हो, जो कि आप सबके लिए बिल्कुल फ्री है। इसमें न सिर्फ आपको जर्नल एंट्रीज सीखने को मिलेंगी बल्कि रोल ऑफ वर्क स्ट्रक्चर और साथ में डबल एंट्री सिस्टम को भी हमने काफी डिटेल में प्रोफेशनल लेवल पे डिस्कस किया है और साथ में वहीं से आप प्रैक्टिस करने के लिए मटेरियल भी डाउनलोड कर सकते हो। देखिए अब इन सारे बेसिक पॉइंट्स को सीखने के बाद हम चलेंगे अपने इंटरमीडिएट लेवल। ચલો સ્ટુડન્ટ, આ હતું બેઝિક લેવલ. હવે આના પછીની અડધી કલાકમાં છે ઇન્ટરમીડિયેટ એક્સપર્ટ લેવલ. તો હવે એ આપણે આવતા સ્ટડી સર્કલમાં અથવા તો હવે આપણને ગમે ત્યારે એવો સમય મળે ત્યારે આપણે એ જોઈ લેશું.
તો આજના દિવસ માટે થઈને આપણે જે બિગિનર લેવલ હતું તે જોયું. તો આમાંથી ઘણા લોકોને મેં પહેલાં પણ એવી સલાહ આપેલી હતી કે જ્યારે પણ કોઈ પણ સ્ટડી સર્કલ હોય કે કોઈ પણ એક્સપર્ટ લેક્ચર હોય કે ગેસ્ટ લેક્ચર હોય, તો ત્યારે એક નોટ બનાવીને રાખે અને એમાં બધી વસ્તુ જે આપણને જરૂરી લાગે તે બધું નોટ ડાઉન કરે. તો આશા રાખું છું કે તમે લોકોએ આમાંથી ઘણી બધી વસ્તુ જે તમને એવું લાગી હોય કે આ જોવા જેવું છે અથવા તો જાણવા જેવું છે, નોટ ડાઉન કરવા જેવું છે, તો તમે લોકોએ કરેલું હોય છે. તો બસ આજનું સ્ટડી સર્કલ આજે અહીંયા કમ્પ્લીટ કરું છું. આપણે ફરીથી આવતા સ્ટડી સર્કલમાં અને આપણા લેક્ચર્સમાં મળતા રહેશું. થેન્ક યુ સો મચ. અને હવે બધાય લીવ થઈ શકે છે.